اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کا لطف میں آج ہمارے ساتھ اکٹھا ہونے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ دیکھیں، آپ جتنا خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں اتنا ہی زندگی کے شب و روز کا لطف اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مشکل اور پیچیدہ دنوں کا بھی۔ میں خوف کے متعلق بات کر رہی تھی اور اس پر ایمان سے غالب آنا اور جاننا کہ خوف میں فتح کیا ہے۔ اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ کو خوف میں فتح کا مطلب سمجھ نہیں آیا، تو لفظ خوف کا اصل مطلب بھاگ کھڑے ہونا یا کترا کر نکل جانا ہے، اور بائبل میں بہت سی جگہوں پر لکھا ہے خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب خدا لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خوف کو محسوس نہ کریں۔ ہم ہمیشہ زندگی کے مختلف لمحات میں خوف کو محسوس کریں گے، مختلف وجوہات کی بنا پر، مختلف موقعوں پر، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمیں اپنے ہر ایک احساس کے آگے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں۔ ہم خوف میں ہمیشہ فتح پا سکتے ہیں، چاہے آپ کو ڈر محسوس ہو۔ اسے خود پر حاوی ہونے نہ دیں کہ وہ آپ کو ہر وہ کام کرنے سے روکے رہے جو خدا نے آپ کے دل میں ڈالا ہے، یا وہ جو آپ کے اپنے دل کی مرضی ہے اور وہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں احمق بن جانے کی صلاح نہیں دیتی اور یہ نہیں کہتی کہ آپ کو پانی سے ڈر لگتا ہے اور آپ تیر نہیں سکتے اور آپ گہرے پانی سے ڈرتے ہیں تو میں آپ کو اس میں چھلانگ لگانے کی صلاح نہیں دیتی کہ آپ سوئمنگ پول کی حد کو خوف میں چھوائیں۔ میں جن چیزوں کی بات کر رہی ہوں وہ معقول چیزیں ہیں جو آپ کو اندر سے پتا ہیں کہ خدا آپ کو کرنے کو کہہ رہا ہے، اور وہ چیزیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی خود کو چوٹ پہنچائے کہ چونکہ جوائس نے کہا کہ خوف میں کر دو، لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو لوگ کھو دیتے ہیں، جیسے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جنہیں پارٹی میں آنے کی دعوت ملی اور وہ نہیں گئے کیونکہ وہ خوف زدہ تھے کہ وہ وہاں کسی کو نہیں جانتے، یا انہیں ڈر لگتا تھا کہ انہیں رد کر دیا جائے گا، یا وہاں کوئی ایسا موجود ہوگا جن سے ان کا کوئی مسئلہ رہا ہے اور وہ پھر سے ان کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ آپ کے پاس یقیناً خوفزدہ ہونے کے ڈھیروں مواقع ہوتے ہیں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے، لیکن جب بھی خوف آ کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے، آپ کو ایمان سے جواب دینا ہے۔ لیکن خوف سے پاک زندگی کے لیے ہمیں شک سے پاک زندگی کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم جب بھی شک کرتے ہیں خدا ہم پر برہم ہو جاتا ہے۔ توما نے شک کیا اور اس نے کہا، میں تب تک نہیں مانوں گا جب تک تیرے زخم میں انگلی ڈال کر نہ دیکھ لوں۔ تو یسوع نے اسے ایسا کرنے دیا اور اس نے اسے دکھایا، لیکن تب یسوع نے یہ بھی کہا کہ مبارک ہے وہ جو بن دیکھے ایمان لائے، اور میرا خیال ہے ہمیں اس مقام پر پہنچنا ہے۔ مطلب اگر آپ کو واقعی شک ہے تو آپ اس سے متعلق خدا سے بات کر سکتے ہیں، لیکن پھر دعا میں بھی رہیں کہ آپ اس مقام تک پہنچیں گے جہاں آپ کو ایسے شک عذاب میں مبتلا نہ کریں۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ شک سے کیسے بچیں، کیونکہ جب بھی شک آتا ہے مطلب یہ ہے کہ دشمن ہم سے کچھ چرانے کی کوشش میں ہے۔ اور میں کہوں گی کہ شک بھی ننھا سا خوف ہی ہے، کیونکہ یہ عذاب میں ڈالنے والا پلا ہوا خوف نہیں ہے، لیکن یہ اسی کی شروعات ہے۔ اگر ہم شروعات میں ہی اس کو روک لیں تو اس پر غالب آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ابراہیم نے ناممکن بات پر ایمان رکھا، خدا نے اسے کہا کہ وہ اسے اولاد عطا کرے گا، لیکن وہ دونوں بچہ پیدا کرنے کی عمر سے آگے نکل چکے تھے، اور اس انتظار کے وقت کے دوران انتظار کے اس وقت کے دوران کہ خدا اپنے وعدے کو اس کی زندگی میں پورا کرے۔ رومیو 4:18-21 وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ کچھ نسخوں میں یوں بھی لکھا ہے، امید کے سب موسم بیت جانے کے بعد بھی اس نے ایمان سے امید رکھی، یعنی کہ اس کے پاس امید کی کوئی معقول وجہ نہ تھی جسے دیکھ کر وہ کہہ سکتا کہ یہ خوش آئند ہے۔ مطلب وہ سارا کے بنجر جسم کو دیکھ کر یہ سوچ سکتا تھا کہ مجھے اس سے کچھ امید نہیں ہے۔ وہ خود کو یعنی 100 برس کے بڈھے کو دیکھ کر سوچ سکتا تھا مجھے کچھ امید نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں اپنی امید کو چیزوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی امید کو خدا میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم ماننا شروع کریں کہ تمام چیزیں خدا میں ممکن ہیں۔ میں کبھی کبھار یہ سوچتی ہوں کہ ہمارا شک زیادہ تر یہ نہیں ہوتا کہ کیا خدا کر سکتا ہے،
بلکہ ہمارا شک یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ ہمارے لیے یہ کرے گا۔ ہم میں خود کو لے کر شک ہے اور ہم آج اس پر بات کریں گے۔ امید کی ہر وجہ جاتی رہی، وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی، وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا۔ اس نے حالات سے منہ نہ پھیرا، اس نے ان کا سامنا کیا، لیکن اس نے کہا خدا بڑا ہے، اور میرا خیال ہے کہ خدا چاہتا ہے آپ یہی کریں، اپنے حالات سے ڈرے نہیں، ان کا سامنا کریں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہیں دیکھ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، تم میں سے میرے خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ خدا میں سب کچھ ممکن ہے۔ اور کچھ نسخوں میں لکھا ہے بعض نے شک میں پڑھ کر نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے پر شک کیا، اور اب اسے سمجھیں، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ وہ مضبوط ہوا اور اس کا ایمان مضبوط تر ہوتا گیا، جبکہ اس نے خدا کی تمجید جاری رکھی اور وقت سے پہلے اس کے لیے شکر گزاری کی جو وہ کرنے والا تھا۔ دیکھیں، جب آپ نے خدا کو کچھ ایسا کرنے کے لیے کہا ہے جو آپ کی زندگی میں ناممکن نظر آتا ہے، تو جب بھی شک آئے تو ایک کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا منہ کھول کر کہیں میرا ایمان ہے کہ خدا میری زندگی میں کام کر رہا ہے اور میں خدا کے مقررہ وقت میں فتح مند ٹھہروں گی۔ بائبل کہتی ہے یہ وہ غلبہ ہے جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان آپ کی زندگی میں فتح کو لاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان امید کی گئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اب آئیں اس پر غور کریں کہ یہ کیا ہے۔ یہ ان چیزوں کا اعتماد ہے جن کی امید کی گئی لیکن دیکھا نہیں گیا، اندیکھی چیزوں کا ثبوت جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ آئیں ایک مثال دیکھتے ہیں میرا اور میرے شوہر کا۔ اس شہر میں ایک گھر ہے اور آپ کہتے ہیں ہمیں یہ بات کیسے پتا کہ وہ گھر آپ کا اپنا ہے؟ میں اپنا گھر یہاں اسٹوڈیو میں لا کر آپ کو نہیں کہہ سکتی کہ دیکھ لیں میرا گھر، لیکن میں اپنے گھر کے دستاویزات لا کر دکھا سکتی ہوں اور پھر آپ کہیں گے ہاں میں مانتی ہوں کہ آپ کے پاس گھر ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کی دستاویز ہے جو بظاہر اس وقت نہیں دکھائی دیتی، لیکن خوف در حقیقت منفی باتوں کا یقین کرنا ہے۔ خوف ان چیزوں کا ثبوت ہے جن کی ہم امید نہیں کرتے، اور ان باتوں کا اعتماد ہے جنہیں ہم ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور میرا ماننا ہے ایمان تو پیدا کرنے کی قوت رکھتا ہی ہے، لیکن یہ پیدا کرنے کی قوت خوف میں بھی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر آپ دیر تک کسی بات کو لے کر خوف میں مبتلا رہتے ہیں تو وہ آپ کے حالات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ایوب نے کہا کہ جس بات سے میں بے حد ڈرتا تھا وہی مجھ پر آن پڑی۔ جب ایمان آتا ہے تو ہم اپنے الفاظ کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں۔ ابراہیم نے بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے پر شک نہ کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی اور اسے جلال دیا، پورے یقین کے ساتھ کہ خدا اپنے وعدے کے عین مطابق کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے ہمیں آج یہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے؟ وہ آپ کے لیے ہمیشہ بہترین ہی کرے گا۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ خدا میں سب کچھ ممکن ہے؟ دیکھیں، میں نے خدا پر اس حد تک بھروسہ کرنا سیکھا ہے کہ اگر اس سے کچھ مانگتی ہوں اور تب نہیں پاتی تو میں جان لیتی ہوں کہ میری دعا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ خدا ٹھیک نہیں ہے، جو میں نے مانگا وہ خدا کی نظر میں میرے لیے بہترین نہیں تھا، وہ میری مانگی ہوئی چیز مجھے نہیں دے گا کیونکہ وہ میرے لیے بہترین ثابت نہ ہوگی۔ بہت بار ہم ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بھلی ہیں، ان میں شاید کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے لیے آپ فی الوقت تیار نہیں ہوتے، یا خدا کے ذہن میں آپ کے لیے بہتر بات ہوتی ہے اور آپ کو اب تک مانگنا بھی نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ خدا کے پاس ہمارے لیے بہت سی زبردست چیزیں ہیں اور ہم میں جرت نہیں ہے، ہم میں ایمان نہیں ہے کہ خدا سے انہیں اپنے لیے کرنے کو کہیں۔ کیونکہ ہم خود پر شک کرتے ہیں۔ ہمیں شک ہے کہ خدا ہمارے لیے یہ کرے گا۔ یاد رکھیں، آپ خدا کے لیے نئے نہیں ہیں، وہ آپ کو آپ کے پیدا ہونے کے دن سے پیشتر جانتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر دن اس کی کتاب میں درج ہے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ میں شکل عطا کرتا۔ وہ آپ کی ہر ایک خطا اور غلطیوں سے واقف ہے جو آپ کریں گے۔
जब तक आप उस पर भरोसा करते रहेंगे, जब तक ईमान में चलते रहेंगे और एतकाद रखेंगे कि यीशु ने आपके लिए जान दी। आप अपने गुनाहों को मानते हैं, आप उनसे तौबा करते हैं और एक खुदा परस्त जिंदगी जीना चाहते हैं। आपके गुनाह आपसे ऐसे दूर किए गए जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। खुदा आपसे खफा नहीं है, वो आपकी मदद करना चाहता है। याकूब के खत में लिखा है, अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है। यानी कि मैं कुछ अहमकाना काम करके खुद को मुश्किल में फंसा सकती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे एहसास होता है तो मैं खुदा के पास जाकर कहती हूँ, मुझे पता है मैंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है कि मैंने ये किया, और खुदा मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरी मदद चाहिए और बता कि मैं इस दलदल से कैसे निकलूं, या अगर मैं कुछ नहीं कर सकती तो तू मेरे लिए कर दे। और वो ये नहीं कहेगा कि देख तूने ऐसा किया या वैसा किया। लिखा है वो मलामत किए बिना सबको फयाजी से देता है। पता है दुनिया आप में बहुत से खोट निकाल सकती है, लेकिन खुदा आपकी गलतियों का तस्करा नहीं करता। वो हमारे लिए रहम से भरा है। अब्राहम नाउमीदी में ईमान लाया, वो ईमान में ज़ईफ ना हुआ बल्कि मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और जलाल दिया। अब मैं आपको मरकज 5 बाब से कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसमें दरअसल यीशु ने शक और बेएतकादी की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। मेरा ख्याल है हम सीखने वाले हैं कि किस तरह खुदा की आवाज और दुश्मन की आवाज में पहचान करनी है। अगर दुश्मन हो तो हमें बस इतना कहना है कि मैं जानती हूँ कि तू झूठा है, सो मैं तुझे नजरअंदाज करूंगी और खातिर में ना लाऊंगी। मरकज 5 की 22। मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी में खो जाएं। कभी कभार हम बस पढ़ते हैं और ज्यादा गौर नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि मेरे पढ़ते हुए आप ये माने कि आप यहाँ हैं और सब देख रहे हैं। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और यीशु को देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। इस शख्स की दरख्वास्त की शिद्दत का आप जरा अंदाजा करें कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, लेकिन मेरा ईमान है कि अगर तू आकर उस पर हाथ रखे तो वो अच्छी हो जाएगी। यीशु तो रहम से भरा था जी। सो लिखा है वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे, क्योंकि यीशु जहाँ भी जाता भीड़ उसके पीछे पीछे होती। और इस भीड़ में एक औरत थी जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ। लेकिन उसने यीशु के बारे में सुन रखा था और एम्पलीफाइड तर्जुमे में लिखा है कि खुद से कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। क्या बात है। देखें, अगर आप खुद से बातें ही करते हैं तो आप कुछ अच्छी बातें बोल सकते हैं। मैं ईमान रखती हूँ कि अगर यीशु को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु उस शख्स की बेटी को शिफा देने जा रहा था जो मरने को थी, और अब वो किसी और की मदद करने रुक जाता है। सोचिए आप इस वक्त क्या महसूस करेंगे। सोचिए अगर आप यायर होते तो किस किस्म का शक और खौफ उस वक्त आपके जहन पर हमला आवर होता। जब उसने यीशु को फिलफोर छुआ तो उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में महसूस किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई है। और यीशु ने महसूस किया कि उसमें से कुव्वत निकली है। खुदा की ये कुव्वत हकीकी है जिसे छुआ जा सकता है। जब खुदा की कुव्वत आपकी जिंदगी में काम करती है तो पता लगता है। और यीशु ने भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, मुझे किसने छुआ? उस पर शागिर्दों ने सोचा कि ये कैसा सवाल है कि इतनी बड़ी भीड़ है, यहाँ इसका क्या मतलब है कि तुझे किसने छुआ? हर किस्म के लोग ही तुझे छू रहे हैं। लेकिन जानते हैं, उस औरत ने उसे ईमान से छुआ। क्या आज आप खुदा को अपने ईमान से छू सकते हैं और ये मान सकते हैं कि चाहे आपकी मुश्किल कैसी ही क्यों ना हो, खुदा आपको उस दलदल से निकाले और आपकी जिंदगी को बहाल करने की वो कुदरत रखता है। लेकिन वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। और उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से
तुझे शिफा मिली, सलामत जा। तेरे ईमान से ईमान काम करता है, ईमान बहाली लेकर आता है, ईमान बदलाव लाता है, ईमान शिफा बख्शता है। ईमान आपकी जरूरत की नौकरी आपको तब देता है जब कोई नौकरियां नहीं होती। वो ये कह ही रहा था कि यायर के घर से कोई ये कहता हुआ आया कि तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। ओ मेरे खुदा, उस वक्त उसको कैसा लगा होगा। ओह यसु, तू इसके लिए क्यों रुक गया, हालांकि मैंने तुझे बताया था कि मैं किस कठिन सूरत हाल में हूँ। वो ये नहीं बता रहा जो उसने कहा, लेकिन शायद उसके दिल में ये सब आया हो। लेकिन अब सुने आयत नंबर 36 में, मरकस 5:36, जो बात वो कह रहे थे एम्प्लीफाइड बाइबल में ये लिखा है। उस पर यसु ने तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फक्त एतिकाद रख। वाओ, जो वो कह रहा है वो एक बहुत बड़ी बात है। फक्त अपनी आंखें यसु पर रख। क्या कहता है? मेरा ख्याल है इब्रानियों 12 है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यसु को तकते रहें। खुदा आप में इसलिए ईमान पैदा नहीं करता कि बस आपको महरूम छोड़ दे बिना किसी जवाब के। वो आपके ईमान का बानी और कामिल करने वाला है। लेकिन कभी कभार आपको ईमान रखना होता है जब कुछ भी कारामद नजर ना आता हो और लगता हो कि आप कभी भी और किसी भी तरह से अपनी दुआ का जवाब ना पाएंगे। मुझे लगता है ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना ख्वाब खो चुके हैं। ऐसे लोग जिनके जहन में दुश्मन ये डाल चुका है कि भूल जाओ, ये कभी होने वाला नहीं है, भूल ही जाओ, तुम फक्त ख्याली दुनिया में हो। खुदा ने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं की। सुने, जरा देर के लिए अपना सर झुकाएं और अपने दिल में जरा झांक कर देखें कि क्या है। अगर आप चूक गए थे और आपसे गलती हुई तो इसको माने और वही कहें। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी में ये करना चाहता है और मेरा ये ईमान है कि खुदा ने मुझसे ये बात की, तो आपको अपने ईमान को आज ताज़ा करने की जरूरत है। इन शोलों को हवा दें जो कभी आपके सीने में दहक रहे थे और फिर से कहें, मैं खुदा पर ईमान रखती हूँ, चाहे जितनी भी देर लगे। मैं खुदा से मायूस नहीं होंगी क्योंकि मेरे पास इस बात के लिए उसका कलाम है और वो वफादार है। उसने पतरस और याकूब और यूहन्ना के सिवा किसी को अपने साथ चलने की इजाजत न दी। अब ऐसा क्यों था? यसु इस लड़की को मुर्दों में से जिलाने को था और वो अपने इर्द गिर्द बहुत सा शक और बेएतिकादी नहीं चाहता था। वो अपने इर्द गिर्द ईमान को चाहता था। और पता है, जब आप बेचैन हालत में हो और कुछ होता नजर ना आए तो आपको अपने इर्द गिर्द मनफी लोगों के ग्रोह की जरूरत नहीं जो कि हमेशा आपसे कहें कि ये तो नहीं होगा। आपको अपने आसपास मजबूत लोगों की जरूरत है जो ईमानदार हों और आपकी हौसला अफजाई करें और कहें खुदा आपके साथ है। मैं चंद लोगों को जानती हूँ, जब मुझे किसी दुआ करने वाले की जरूरत होती है तो मुझे पता है कि किसको कॉल करनी है, क्योंकि वो लोग बस ये नहीं कहेंगे हाँ जरूर आपके लिए दुआ करेंगे। वो दुआ करेंगे और मुझे एतमाद है कि खुदा उनकी सुनता है। और वो सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है, लोग बहुत रो पीट रहे हैं। और अंदर जाकर उसने उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। और वो उस पर हंसने लगे। लेकिन वो सबको निकाल कर, यानी शक और बेएतकादी से उसने पीछा छुड़ाया। वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी। इसका तर्जुमा है, ए लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो लड़की फिलफौर उठकर चलने फिरने लगी। यकीनन आप में से कुछ लोग अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं अगर आप फक्त चंद ऐसे लोगों की सोबत में ना बैठें जो मनफी और बेएतिकाद हैं। जानते हैं मैं मनफी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये दिलचस्प है क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त भी था जब मैं बहुत मनफी थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा जहन दो मस्बत बातें क्या सोच लेता कि उसमें मरोड़ उठने लगते। मतलब मेरे बाप की सोच निहायत मनफी थी। वो किसी पर भरोसा न करता, किसी को पसंद न करता और मैं मनफी होने की सोच को लेकर बड़ी हुई। और अगर कभी मस्बत सोच थी तो मुझे वो ख्याल अहमकाना लगने लगता। खुदा को मुझे बदलने में वक्त लगा। मेरी और डेव की शादी को इतनी देर नहीं हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा, तुम हमेशा इस कदर मनफी क्यों हो? मैंने कहा, अगर आप कभी कुछ अच्छा होने की उम्मीद ना करें
तो ऐसा ना होने पर आपको मायूसी नहीं होती? और मेरी जिंदगी में बहुत सी मायूसियां थी और मुझे लगता था कि बुरी चीजों की तवक्को करके शायद मैं अपनी हिफाजत कर रही हूँ। मेरा वाकई वो हाल था जिसे बाइबल इमसाल 15:15 में बुरे अय्याम कहती है। मुझे हमेशा एक खौफ सा लाहक रहता कि अब मुझ पर हथौड़ा गिरने वाला है। सच कहूँ तो आपको बहुत मोहतात रहना है कि कहीं ऐसी सूरत हाल में ना उलझ जाएं। सो अगर इस वक्त आप मसाइल का शिकार हैं तो लोगों को या अपने दोस्तों को सिर्फ उन पर बात करने मत दें और फिर सोने पर सुहागा कि वो आपके मसाइल पर सिर्फ मनफी बातें करते हैं। खुद को ऐसे लोगों की सोबत में लाएं जो खुशी को लाएं, जो आपको हंसाएं, जो आपको हौसला दें और बताएं कि खुदा सब कुछ कर सकता है। लफ्ज़ शक की तारीफ की जाए तो इसका मतलब बिना किसी राह के होना है, बिना किसी वसीले के होना, शर्मिंदा होना, किसी नुकसान को लेकर हैरत ज़दा होना। शक का मतलब दो कश्तियों में सवार होना भी है, जो कि अदम यकीनी को जाहिर करता है कि कौन सा रास्ता लिया जाए। ये कम एतकाद ईमानदारों के लिए कहा जाता है कि ये हवा में है, जैसे कि हम कहते हैं कि ये बातें हवा में हैं। पता है खुदा चाहता है कि हम उसे भला जाने और वो हमारी मदद करना चाहता है। जैसा कि मैंने कहा याकूब 1:5-8 में लिखा है, अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। सुने कि आप अभी से अपने जहन को अपने ईमान के मुताबिक तैयार करें और इस पर कायम रहें। मैं फिर कहूंगी, अपने जहन को अपने ईमान के मुताबिक तैयार करें और उस पर कायम रहें, और एक लम्हे के लिए भी ये गुमान न करें कि आप आजमाए नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा होगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा, लगेगा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तब भी आप ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते हैं और कहते जाते हैं कि मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि खुदा ने मुझे दहशत की नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। और मुझे पता है खुदा मुझसे प्यार करता है और वो मेरी जिंदगी के लिए अच्छा मंसूबा रखता है। अब जैसे कि मैंने पहले कहा, बहुत मर्तबा हम खुदा से भी खुद पर ज्यादा शक करते हैं। सो आज का हमारा वक्त खत्म होने से पहले इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। क्या आपने अपने हर एक अमल पर तनकीदी निगाह रखी है? क्या आप समझते हैं कि मुझे यूं नहीं करना चाहिए था, मुझे यूं नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये खरीदना नहीं चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, मुझे वो नहीं खाना चाहिए, मैंने ज्यादा देर दुआ नहीं की, मैंने बाइबल में से सही बाब नहीं पढ़ा, मैंने कलाम का इकरार आज ज्यादा नहीं किया, मैंने बाइबल स्टडी की लेकिन समझ नहीं आई, मैंने अपने बच्चों को आज सही प्यार नहीं किया, मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे खामोश रहना चाहिए, मुझे बेहतर माँ या बेहतर बाप बनना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। इब्लीस हमेशा आपको आपकी खामियां ही गिनवाता है, लेकिन देखें यीशु आपकी हर कमी घाटे को पूरा करके आपको फतेहमंद बनाएगा अगर आप उस पर ईमान रखें और हर वक्त ऐसी बातें ना करते रहें कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। मतलब मैं कितनी मर्तबा जिंदगी में सुबह जल्दी उठती हूँ ताकि खुदा के साथ अपना वक्त गुजारूं, और मैं दुआ और कलाम का मुताला करती, और जब भी उससे फारिग होती इब्लीस मुझे ये एहसास दिलाने लगता कि मैंने तो गलत दुआ की, मेरी दुआ ठीक नहीं थी, उसका तरीका गलत था, उसका दौरानिया कम था, खुदा ने मेरी नहीं सुनी, और मुझे उसके झूठ को नजरअंदाज करना सीखना और खुद पर शक करना छोड़ना पड़ा। और पता है, यकीनन ये उन अहम तरीन बातों में से एक है जिन्हें आप बहुत देर तक सुनते रहेंगे। खुद पर शक मत करें, देखें खुदा आप पर एतबार करता है, लेकिन अगर आप खुद पर एतबार नहीं करते तो इससे आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला। और मैं ये नहीं कह रही कि गुरूर और तकब्बुर से भर जाएं, कि खुदा की तमजीद हो कि मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हर रोज खुदा के लिए बेहतरीन काम करने के इरादे से उठें, जबकि आप ये बात पहले से जानते हैं कि आप 100% कामिल नहीं हैं, लेकिन ये मानते हुए कि खुदा आपके गुनाहों को ढांपने के लिए और इनका इलाज करने के लिए काफी है। खुदा नहीं चाहता कि आप हमेशा खुद पर शक के अजाब में मुब्तला रहें। ईमान रखें कि खुदा बात करता है, ईमान रखें कि खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपकी जिंदगी के लिए अच्छा मंसूबा रखता है। ईमान रखें कि आप कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं कर सकते जिसे खुदा पलट कर मुआवजे की शक्ल न दे सके।